is one part. Okay, that is done. At least we can do what is required on our part. We can take care of that. Rest everything might be variable, but this is fixed and we can do it, right? The second part that I'm going to cover is how to create retail volume. How do you generally, when you watch a movie, how do you promote it? We promote it to everybody, right? Oh, did you? There's a recent movie that came out, a Bollywood movie. It's called Airlift. So everybody has been talking about it. Everybody on Facebook is talking about that movie. My friends have been telling me over the phone that, oh, watch Airlift. It's a very nice movie. What did I do? I went and watched it. Saw that movie, right? So that is how you just share your products with people. Now, if you are a person who loves selling, great, talk to people as a salesperson, no problem. But if you are like me, who does not have any sales background, I haven't done, our families are not in the business in generations, everybody has been doing job. So just share the products, and that will give you a lot of belief. What I generally do is, if I have my friends, I was taking protein, since Rajiv shared that we just had a new baby girl, so I'll share. I was taking protein powder from a business during pregnancy, and I had another friend who was pregnant along with me, and I just shared with her, I am a vegetarian, and this is how I get my protein requirement. Would you like to try? One of my friend is doing it because she was from my workplace, and she ordered right away. So it's not difficult. All you have to do is just share, open your mouth and just share. That will do everything. Okay. If you are apprehensive in doing these things, take help of your upline. Maybe make one or two calls with the help of your upline, and that will give you more confidence in how to do it and how to share and retail. Once you have an established customer base of 5 to 6 people, doing 100 plus PV or doing even 300 PV is not that difficult. So do that. If you have a customer already, make sure you follow up with them, because follow up is very important. A lot of times they do not order something for a few months, but after 3-4 months they again need something. So make sure you keep following up with them. Okay. How to approach someone for products, I think I already covered that. And there is no cookie cutter approach in approaching for products. Okay, you have to be dynamic in how you're doing it. With friends it can be different, with family it will be different, with C-list it will be totally different, right? And whatever you are comfortable with, whatever you think is in your zone and you can do it, do that. If you get a no, do not worry about it. It's like a plan. The way we get no for a business plan, it's okay for people to say no to products, because not everybody understands the value, and not everybody understands that what is good in our products. The people who do, they will order right away. So, like, I personally have started doing that. Somebody who's buying vitamins from Walmart all the time, I generally don't waste my energy in recommending our vitamins, because you know that it's not going to work. So why would you want to waste energy? So just gauge the balance between where to talk, what to talk, and that will give you a lot of confidence, and you would be able to share about your products. Okay. Then how to handle price concern. Yes, that was one of the biggest things that even I was, it was always a hurdle for me, that when they ask me the price, how am I going to tell them? Right. And I think a lot of people do get this price concern. People hear from here and there saying, oh, Amway products are expensive, and this and that. First of all, as I shared, I don't waste a lot of my energy in people who are like totally buying vitamins or things from Walmart or drugstore, right? Because there is a little price that we pay for getting good quality products, right? So first of all, explain them the quality. There's a CD by Joe Pici of value proposition on products. Value proposition, excellent CD. If you get a hold of it, listen to that, and get to know your own products, which will allow you to compare your product with something that your customer has been using from outside, right? Maybe it's the shampoo or the vitamin. I know you comparing our vitamins and artistry with outside products is very easy. It's not at all difficult. So do your study beforehand, and you would be able to check that. If somebody doesn't have to buy it, they will not buy it. Whatever you do, if they're adamant for not buying, they will not do it. So don't worry about it. Okay. And whenever
talk about the concentration of the products, the quality of the products, how old the company is, the organic market. These days, organic is a big deal. Non-GMO and organic is a big deal going on everywhere. And everything is very expensive if it is organically termed. So talk about all those things. And when you are in a follow-up, and I think you must have heard this from a lot of people. You've shown the product, you've shared what are the qualities. Now just ask them, how would you like to pay for this product, right? And if then they will come up with with the concern of price and this and that, and then then give them the comparison. Okay. And I think I had one more thought and I lost it, but I will come back to it. Apart from this, generating retail volume, if you are a new IBO, generating retail volume can be done using a grand opening, which will already give you a base of creating customers. A small grand opening can be done, or a small product expo can be done. Check with your upline and they will help you in creating that volume. Along with volume, you will create some extra, a few dollars over the bonus that you make every month. New people can qualify for fast track. So all these things, a lot of perks in doing good retail. So yes, and if you have any questions, and if you are stuck somewhere, definitely get back with your uplines, because they have done this and they know what is right and what is wrong. So get back to the people who are helping you, and you will be able to retail a lot of products and use your own products. With this, I'm done, and back to the phenomenal host Rajiv. Thanks a lot, Kriti, for sharing those awesome nuggets. A lot of information in very short time, crisp and clear. Thanks a lot. So I'll quickly move to the next topic. Okay, so next topic is, of course, one of the very important topic in this business. What is effective communication? How should you communicate? What is the frequency? And how communication impacts accountability. And of course, communication is one of the major key in expanding your business over here. And there couldn't have been the better person than Anoop and Ankita Kohli to talk on this particular topic. Of course, they are building this business. They are living in currently in California, building this business as a couple. They do have a small kid also. And they're building this business with passion, and they have presence all over North America. So I would definitely invite Anoop and Ankita to, talk on this topic. Okay. Hi, everyone. This is Anoop. My wife, Ankita. Oh, she's downstairs actually. We have a 3.5-year-old son. Okay, let me figure out the video actually. अब सही लग रहा थोड़ा. Good. So क्या हाल है यार? I know Pinakin just saw यार आपका post today. केम छो? શું ચાલે છે? All good? सही है. Welcome यार. Welcome. Welcome to everybody. I know a lot of people are joined in. I know people from Australia यहाँ पे हैं. India, obviously United States, right? So welcome to everyone. What I'll मेरे ख्याल से मैं देख रहा था सब लोग जो log in है, try to see कि I think everybody should understand Hindi, correct? अगर यार if you do not, please let me know. I'll change my tone. But so what I'll try to do here is that talk about communication. Obviously, before we start, we are Anoop and Ankita. हमारे uplines are Dhiren and Shruti, Sudhir and Afreen Pargaonkar. I'm sure आपने Sudhir and Afreen के बारे में definitely सुना होगा. Sudhir and Afreen are somebody जो कि at least US मार्केट के अंदर काफी बड़ा बिजनेस है उनका. ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इंडिया के अंदर काफी बड़ा बिजनेस है. तो काफी बड़ा नेटवर्क है, बेसिकली काफी बड़ा टीम है उनकी, राइट? तो हम लोग उनसे गाइडेंस लेते हैं. वी गेट अ चांस कि उनसे कम्युनिकेट करें, बात करें. तो and Sudhir kind of gave me this topic कि भाई I should talk about communication, right? So communication, okay यार, how does it work? Okay, maybe this is ये video ठीक है, right? Everybody is good? Okay, Yeah. Okay. High five कर दो यार, if it is good, at least high five दिख जाएगा, सुनना तो नहीं. Hey, thank you Taru, that is really encouraging यार. Okay, but good. Okay, so let's talk about communication, right?
सो यार सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूंगा तो कम्युनिकेशन इज नथिंग बट बातचीत, करेक्ट। नाउ अब जैसे अभी आप एक नए बिजनेस में आए हो, राइट। अब आपको मैं पता होगा एमवे के बारे में भी पहले से पता होगा, या फिर आपके फ्रेंड ने आपको इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने आपको लेके आए, करेक्ट। नाउ अब यहाँ पे आप थोड़ा सा मे भी शुरू में कंफ्यूज हो कि भाई चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, करेक्ट। तो आपको आपकी कंफ्यूजन है, राइट। अब आप कंफ्यूजन को कैसे दूर करोगे? ठीक है, बातचीत करके, राइट। किससे बात करोगे? जो बंदा जिस कपल या जिस बंदे जो आपको इंट्रोड्यूस किया है, राइट, उसको ऑब्वियसली आपसे ज्यादा पता है, राइट। सो द आइडिया इज दैट कि आप उनसे बात करो, अपने क्वेश्चंस आंसर करो, करेक्ट। तो वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो गया, करेक्ट। अगर मान लो आपने क्वेश्चन पूछा, करेक्ट, और आपको आंसर मिल गया, तो वो आपके लिए इफेक्टिव है, मतलब वो काम कर रहा है आपके लिए, राइट। बट मान लेते हैं कि आपने क्वेश्चन पूछा और आपको नहीं मिल रहा आंसर, तो दैट इज मे बी समथिंग टू बी ट्वीक्ड, या फिर, है ना। तो सबसे पहले मे बी आई विल जस्ट टॉक अबाउट कि किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली आपको रियलाइज करना पड़ेगा, जैसे पेनिकन, राइट। अब आप आप गुजरात से हो, राइट, है ना, और आप इंडिया में बैठे हो। नाउ अब जैसे विशाल हेमिना मिशिगन में बैठे हैं, करेक्ट। ओके, नाउ जिगू पटेल आप मे बी आप भी गुजरात में बैठे हो, करेक्ट, है ना। सुरेश आप इंडिया में बैठे हैं, गौरांग आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो। अब ये रियलाइज करना पड़ेगा कि बात कैसे होगी, करेक्ट। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे? एक सिंपल सा तरीका है व्हाट्सएप बहुत ही फ्रीली अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। सेकंड इज स्काइप के थ्रू अवेलेबल है, ठीक है। फोन कॉल आप हमेशा बात कर सकते हैं, करेक्ट। तो जनरली दोज आर जो तरीके हैं, दोज आर द वेज दैट वी टॉक आपस में, करेक्ट। नाउ 3 तरीके के लोग आपको इस बिजनेस में मिलेंगे, 3 तरीके के, ठीक है। पहला, जो बंदा आपने जिस बंदे ने आपको बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, उसको हम अपलाइन बोलते हैं, ठीक है। उसको किसी ने इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया होगा, वो उसका अपलाइन हुआ, करेक्ट। तो यानी आपसे जो ऊपर लोग हैं वो अपलाइन हो गए, एक, ठीक है। सेकंड, जिन बंदों को आप इंट्रोड्यूस करोगे वो डाउनलाइन हो गए आपके, करेक्ट, वो आपकी टीम होगी, डाउनलाइन हो गए। तीसरे, जो बाकी के लोग हैं वो क्रॉस लाइन हो गए, करेक्ट, है ना। जो बाकी के लोग जो एमवे में बिल्ड कर रहे हैं, उनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ना वो आपके अपलाइन में है, ना वो आपके डाउनलाइन में है, वो क्रॉस लाइन में। तो मैं 3 तरीके से कम्युनिकेशन की बात करता हूँ। पहला कम्युनिकेशन है कि अब आप नए स्टार्ट हुए, अभी आपकी टीम में ऑब्वियसली कोई नहीं है, क्योंकि अभी आप स्टार्ट हुए, है ना। तो सबसे पहला कम्युनिकेशन है कि आप अब स्टार्ट हुए, तो अब ऑब्वियसली आप कोई रीजन से स्टार्ट हुए, आप चाहते हो कि यार मेरे को मतलब कुछ करना है, मतलब कुछ कर या तो पैसे कमाने हैं, या टीम बनानी है, या कुछ भी, जो भी आपका एक मन में बात थी जिसकी वजह से आपने ज्वाइन किया, ओके। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। आप सबसे पहले आप आप बातचीत कर लो, जो बंदा आपको लेके आया है टीम बिजनेस में, करेक्ट। यू वांट टू क्लैरिफाई, कम्युनिकेट टू देम कि आप इस बिजनेस में क्यों स्टार्ट हुए हैं। इज इट ट्रू? करेक्ट, है ना। मान लो आपको इसमें से 10,000 रुपए पर मंथ कमाने हैं, या फिर आपको इसमें से 50,000 रुपए पर मंथ कमाने हैं, आपको लाखों कमाने हैं, वो आपके ऊपर है। बट फर्स्ट थिंग इज दैट कि आप कम्युनिकेट कर दो, करेक्ट, कि आप करना क्या चाहते हो इसमें, और कितने जल्दी टाइम में करना चाहते हो। सेकेंड इज दैट, उसके बाद में बेस्ड ऑन दैट, ओके, मान लो वो आपका गोल है, मान लो आपका प्लान है जी कि यार मैंने ना 10,000 कमाने हैं इसमें महीने के अगले 6 मंथ्स के अंदर, ठीक है। इन 6 मंथ्स आई वांट टू रीच अ पॉइंट वेयर आई वांट टू मेक 10,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है, ये मेरा गोल है, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब जो आपका जो फ्रेंड है, या आपकी जो अपलाइन टीम है, वो आपको गाइड कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, करेक्ट, है ना। अब उसमें कपल ऑफ थिंग्स क्या है, प्रोडक्ट्स आते हैं, नेटवर्क बिल्ड करना आता है, बेसिक चीजें हैं, करेक्ट। अभी जैसे मान लेते हैं, जब स्टार्ट हुआ था, आई टेल, मतलब मेरा एक्सपीरियंस क्या था, जब स्टार्ट हुआ था, तो मैं गया, मैंने कहा यार ये बड़ी सही चीज है, ये मैं अपने रूममेट के पास गया, अपने फ्रेंड के पास गया, मैंने कहा यार तुम सब ज्वाइन करो करके, सब थिंग्स लाइक दैट, ओके। बट क्या हुआ कि जिस तरीके से मैंने उनको बोला, जिस तरीके से मैंने उनको बताया, दे रैन अवे फ्रॉम, मतलब वो मुझे
कह रहे यार मुझे नहीं, हमें नहीं करना, हमें नहीं करना, हमें नहीं करना। ओके, बाद में जब मैंने अपने अपलाइन से चेक किया तो उस तरीके से वही रिजल्ट मिलना था मुझे। तो जब मैंने अपने अपलाइन से चेक किया, मतलब आई कम्युनिकेटेड बैक टू हिम, तो दे गाइडेड मी कि यार यू नो व्हाट, यू शुड हैव डन इट दिस वे, आपको इस तरीके से बात करनी चाहिए थी रादर देन इस तरीके से। करेक्ट। आप टूल्स को लेवरेज कर सकते थे, जैसे आप सीडी को लेवरेज कर सकते थे या बुक को लेवरेज कर सकते थे, राइट। तो बेसिकली पर्पस क्या हुआ कि जिनसे जो मेरी अपलाइन टीम है, राइट, आई वाज एबल टू कम्युनिकेट, उनसे मैं बात करके आई वाज एबल टू बी बेटर in this business. Correct. Now when okay, now how to do it? Let's say for example, जैसे for example आपको मतलब आपको लगता है कि यार आपको अपने रूममेट से बात करनी है। करेक्ट। आई गिव यू बहुत ही सिंपल सा कम्युनिकेशन का एग्जांपल। आपको लगता है कि आपको रूममेट को ये इसको बारे में बताना है, ठीक है, तो आप क्या करो, आप अपने अपलाइन को टेक्स्ट कर दो, व्हाट्सएप कर दो, यार यू नो व्हाट, मेरा ये रूममेट है आशीष, ठीक है, मुझे ना इसके बारे में बताना है, इसकी ये बैकग्राउंड है, क्या वो स्टूडेंट है या वो वर्किंग प्रोफेशनल है या उसका बिजनेस है, मुझे इसके बारे में बताना है, आप मुझे बताओ कि मुझे व्हाट इज द बेस्ट तरीका। ओके, अपलाइन आपको या तो कॉल करके या फिर व्हाट्सएप के ऊपर, यार यू नो व्हाट, आप ऑब्वियसली थोड़ा ये बता दो, प्लस यानी ये लिंक दिखा दो, या फिर इससे मेरी बात करा देना बाद में। करेक्ट, ताकि आई कैन गाइड देम। करेक्ट। नाउ दैट इज एन इफेक्टिव वे। नाउ कैन यू टॉक टू आशीष इंडिपेंडेंटली ऑल्सो? हाँ, आप कर सकते हो बात, लेकिन रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं है। मेकिंग सेंस है ना। लेकिन जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो अपने अपलाइन से, तो एक थोड़ा प्रिडिक्टेबिलिटी है, क्योंकि उनके नॉलेज में आप टैप कर रहे हो। करेक्ट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है। कम्युनिकेशन कब करने का, स्पेशली विद अपलाइन, ओके, आई वुड टिपिकली से वंस अ डे, थ्रू एनीथिंग। मतलब आप कुछ भी कर रहे हो, मान लो जैसे आप मीटिंग गए, आपको बहुत एक्साइटिंग लगा, आप वहां की फोटो लेकर के, कोई मैसेज लेकर के अपलाइन को भेज सकते हो। करेक्ट। या फिर आपने कुछ किया, आपको सक्सेस मिली, आप अपलाइन को भेज सकते हो। आपने कुछ किया, आपको सक्सेस नहीं मिली, फिर भी आप अपलाइन को भेज सकते हो। करेक्ट। वंस अ डे आपने कोई सीडी सुनी है, आपने कोई स्ट्रीमिंग सुनी है, आपने कोई बुक पढ़ी है, कुछ भी इस तरीके से हुआ, राइट, आप डेफिनेटली अपने अपलाइन को भेज सकते हो। करेक्ट। तो आप कम्युनिकेट कर रहे हो। उसका एडवांटेज सबसे बड़ा ये भी मिलता है कि अपलाइन नोज कि भाई आपके बिजनेस में चल क्या रहा है। तो कल को आप कोई क्वेश्चन पूछोगे उनसे, तो वो आपको राइट आंसर दे पाएंगे रादर देन अ जेनेरिक आंसर। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, राइट। तो दैट इज वेरी क्रिटिकल। करेक्ट। तो आई वुड से कि एज अ बेंचमार्क, करेक्ट, वंस अ डे, यू नो, इवन आप अपने जॉब में भी बिजी हो, किसी भी चीज में बिजी हो, आप वंस अ डे आप डेफिनेटली कम्युनिकेट करो, किसी भी तरीके से आपको कम्युनिकेट करना है। करेक्ट। ओके। देन आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हो, या किसी प्रोडक्ट के बारे में आपको क्वेश्चन है, आप डेफिनेटली यू कैन डेफिनेटली आस्क थिंग्स लाइक दैट। ओके। नाउ सेकंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, फिर आपके जब आप ये कर रहे हो राइट चीजें, राइट, तो आप लोगों से बात करोगे, लोग आपके नेटवर्क में आएंगे, आप लोगों को स्पॉन्सर कर पाओगे बिजनेस के अंदर। इज दैट ट्रू? करेक्ट है ना। आप लोग 10 लोगों से बात करोगे तो 4 लोग स्टार्ट हो जाएंगे, 6 लोग स्टार्ट हो जाएंगे, थिंग्स लाइक दैट। आपकी टीम में लोग आ जाएंगे, वो आपके डाउनलाइन में आते हैं। करेक्ट। डाउनलाइन कम्युनिकेशन में क्या है, सेम थिंग। अब जैसे वो डाउनलाइन में है, तो आप अब मे बी उस बंदे को इतना आइडिया नहीं है बिजनेस का, आपको ऑब्वियसली ज्यादा आइडिया है। करेक्ट। तो आपका एक तरीके से रोल है कि भाई आप उनको इसके बारे में एजुकेट करोगे। करेक्ट। नाउ अब एजुकेट करने का क्या होता है, एक तरीका होता है जैसे कि क्या कहते हैं आपको, व्हाट डू यू कॉल दैट यार, किसी ने आटा गूंदा यहाँ पे आटा गूंदा है, सब हंस रहे हैं, सब हंस रहे हैं। ओके, गुड। ठीक है, मैंने भी गूंदा एक्चुअली, सो आई एम जस्ट किडिंग। बट जब आटा गूंदते हो, राइट, तो आप थोड़ा आटा लेते हो, ठीक है, आप पानी मिलाते हो और गूंदते हो, और फिर उसमें थोड़ा जो भी मिक्स होता है उसमें थोड़ा ऐड करते रहते हो, एज एंड व्हेन, या कभी पानी ज्यादा चाहिए होता है, कभी आटा ज्यादा चाहिए होता है। करेक्ट। सेम इन्फॉर्मेशन इस तरीके से। ठीक है। जब आपका कोई डाउनलाइन स्टार्ट होता है, तो ऐसा नहीं है कि जो भी आपको पता है वो सारा आप उसके ऊपर एक ही दिन के अंदर सब कुछ उसको बता दो, लाइक मतलब यू नो व्हाट, अब तो तू स्टार्ट हो गया भाई, अब तू यू नो एवरीथिंग, ऐसा नहीं होता। ओके। आप बेसिक चीजें होती हैं, थोड़ा आटा थोड़ा पानी, तो बेसिक चीजें आप मतलब ऑब्वियसली उनको गाइड करोगे, टीम से कनेक्ट करोगे, और एज एंड व्हेन जो वो एक्टिविटी कर रहे हैं, आप धीरे धीरे उनको कम्युनिकेट करोगे, इफेक्टिव कम्युनिकेट करके। करेक्ट है ना। और आप टूल्स ऑब्वियसली लेवरेज कर सकते हैं बिजनेस में, वेबसाइट्स को, बिजनेस को, एवरीथिंग को। इज मेकिंग सेंस?
है ना? तो दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, रादर देन सारा डंप करने की जगह पे आप धीरे धीरे उनको बताएं और धीरे धीरे यू टेल देम मोर अबाउट इट. मेक सेंस? Okay, so that is little bit effective communication. Now for example, दूसरी बात, मान लीजिए आपकी टीम मेंबर का मैसेज आता है आपको पूछने के लिए कि यार let us say I know Sagar just joined, so let's say सागर को मैसेज आता है अपनी टीम मेंबर से कि हे सागर मुझे ये क्वेश्चन है. ओके, अब आपने वो मैसेज देख लिया, ठीक है, और दो ऑप्शन है, या तो आपको आंसर पता है या आपको आंसर नहीं पता. करेक्ट है ना? अगर आपको आंसर पता है और आप कहते हो जी मैं तो जी अगले दिन रिस्पॉन्ड करूंगा, करेक्ट, तो वो बंदा कहेगा यार ये तो मतलब इट्स टू स्लो. करेक्ट है ना? और तो आप क्या करो, ये ना आप रिप्लाई कर सकते हो फटाफट से. टिपिकली आई वुड से विद इन हाफ एन आवर टू 1 आवर आप रिप्लाई कर सकते हो. मान लो आपको आंसर नहीं पता, मान लो आपको भी कहीं से मतलब जुगाड़ करके आंसर ढूंढना है, तो आप रिप्लाई कर दो, हे यू नो व्हाट यार मेरे को पता नहीं है बट आई एम गोइंग टू फिगर इट आउट, आई लेट यू नो मे बी इन हाफ एन आवर 1 आवर व्हाटएवर. करेक्ट? सो लेट पीपल नो. ओके, समबडी मतलब कोई भी आपको रीच आउट कर रहा है तो लेट देम नो. मान लो जैसे आप कोई स्टूडेंट है, ठीक है, कोई स्टूडेंट है, आप तो आप क्या बोलो यार कि यू नो व्हाट एक्चुअली मैं क्लास में हूँ. अब आपको मान लो आपके अपलाइन ने आपको टेक्स्ट किया या फिर डाउनलाइन ने टेक्स्ट किया, ये नहीं है कि जी आप 4 घंटे बाद क्लास खत्म होगी तो, बट यू नो व्हाट आप टेक्स्ट बैक कर दो फटाफट, यार मैं ना भी क्लास में हूँ, मैं 2 घंटे में आपको बताता हूँ, हाउ अबाउट दैट. करेक्ट? तो कम्युनिकेशन हो गया. करेक्ट? इज इट मेकिंग सेंस? है ना? ईमेल का रिस्पॉन्स या फेसबुक का रिस्पॉन्स, किसी भी तरीके का इस तरीके से रिस्पॉन्स आप कर सकते हैं. Okay, now also I see a lot of young guys and girls, so what I would say is that think about it, right? मतलब जैसे अगर आप मान लो कोई रिलेशनशिप में हो, मान लो आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो, करेक्ट, अब आप ये थोड़ी ना मतलब you are in communication, right? Think of it just like that only, मतलब it's just like you being in touch with your parents, है ना? जिस तरह से जो नॉर्मल कम्युनिकेशन की बात है. Okay, I have some notes here, मैं ना actually okay, now quickly third thing, तीसरा जो एस्पेक्ट आता है वो आता है क्रॉस लाइन कम्युनिकेशन, है ना? ना तो कोई आपके अपलाइन में ना आपके डाउन लाइन में, क्रॉस लाइन में. क्रॉस लाइन से आपने ज्यादा कम्युनिकेट, अगर आप पहले से जानते हो, मतलब आपका कोई कजन है या कोई रिलेटिव है, वो ठीक है, मतलब वो आपका कम्युनिकेशन रहेगा. बट इन जनरल मतलब क्रॉस लाइन से आपका कोई खास कम्युनिकेशन होना नहीं चाहिए. ओके, आपका अपलाइन से कम्युनिकेशन होना चाहिए और थिंग्स लाइक दैट. मतलब क्रॉस लाइन से आपको खास कम्युनिकेट करने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए. अगर पड़ रही है तो एक वो अलग बात है, आप अपने अपलाइन के सामने उसको ला सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली उनका अपना बिजनेस है, आपका अपना बिजनेस है, तो आप मिक्स ना करें तो दोनों के लिए अच्छा है ना? नाउ अब क्या बात आती है कि इंपॉर्टेंस ऑफ इट. मान लेते हैं अब 2 ऑप्शन है, राइट? इस टॉक के बाद 2 ऑप्शन है, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, है ना, या फिर हम कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं. जनरली क्या होता है, मैंने एक बात देखी है कि मैं फॉरगेट द बिजनेस, बट इन जनरल भी अगर मुझे कम्युनिकेट करना है किसी से तो मैं तभी बात करता हूँ जब कोई कॉमन चीज हम कर रहे होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा कम्युनिकेशन मेरी ऑब्वियसली मेरी वाइफ से या फिर मेरे जो लोग ऑफिस में हैं उनसे बहुत ज्यादा है, करेक्ट, लेकिन जो मेरे फ्रेंड इंडिया में थे जिनके साथ मैं स्कूल गया था उनके साथ बड़ा कम है. करेक्ट? क्यों? क्योंकि कोई कॉमन एजेंडा नहीं है अभी के टाइम में, राइट? कॉमन एजेंडा इन दिस बिजनेस इज बेसिकली योर गोल, राइट? मान लो आपने 10,000 कमाने हैं महीने में अगले 6 महीने के अंदर, दैट इज द गोल. सो जब आपका एक गोल है बिजनेस में, दैट इज व्हाट आप उसके बारे में, उसके लिए, उसके किस तरीके से अकॉम्प्लिश करोगे, उसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन होगा. मेकिंग सेंस? ओके, वो नेचुरल कम्युनिकेशन होगा. बट मान लेते हैं कि मे बी हफ्ता 2 हफ्ता ऐसा हुआ कि भाई आप थोड़ा इनएक्टिव थे, या हफ्ता 2 हफ्ता ऐसा था कि आप जॉब में ज्यादा बिजी थे, आप नहीं कर. ओके, व्हाट आई स्टिल से इज दैट कि मान लो आप बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हो और आपके पास ऐसा कुछ खास नहीं है बिजनेस के अंदर शेयर करने के लिए, हे व्हाट आई स्टिल से इज दैट यार कि आप फिर भी कम्युनिकेट करो अपलाइन से, एज अ फ्रेंड कम्युनिकेट करो. पूछो, हे यार क्या चल रहा है आपका, मैं अभी भी बिजी हूँ, थोड़ा अगले 4 दिन तक मैं फिर से बिजी रहूंगा, उसके बाद फ्री हो जाऊंगा. हे बट यू नो व्हाट, यू स्टिल मेक इट अ पॉइंट कि आप एक व्हाट्सएप मैसेज या एक
किसी तरीके का भी कम्युनिकेशन आप अपनी टीम के साथ, अपने अपलाइन के साथ आप कर रहे हो। क्योंकि क्या होता है कि कभी ना कभी क्या होता है ना कि एंटरप्रेन्योरशिप जो बोलते हैं, राइट, आजकल बड़ा कीवर्ड हो गया एंटरप्रेन्योरशिप, राइट, बट फंडामेंटल इज दैट कि आप अपने लिए कुछ कर रहे हो, करेक्ट। अपने लिए कुछ करना, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ वेरी ट्रिकी थिंग, बिकॉज उसमें ना कंसिस्टेंट गाइडेंस और कंसिस्टेंट मोटिवेशन चाहिए होता है, क्योंकि डे टू डे बेसिस में ना बड़े सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं एक्चुअली, क्योंकि आपको भी पता है, राइट। अब जैसे आप चाय बनाने लगो हैं घर पे और दूध फट जाए, तो यार आपका मूड ऑफ हो जाएगा, यार क्या यार चाय पीने का मतलब दूध फट गया, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बेसिक फंडामेंटल्स आपको बता रहा हूँ, राइट। बट इसी तरीके की बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको बड़े गोल से डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन में रहोगे ना टीम के साथ में, तो आप वो जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आएंगे ना ऑन द वे, उनको ऊपर निकल करके यू विल बी एबल टू अपने जो गोल आपने आइडेंटिफाई कर रखा है वो आप बेटर तरीके से और फास्टर तरीके से अकॉम्प्लिश कर सकते हो, बिकॉज आप ज्यादा फोकस्ड रह पाओगे गोल के ऊपर, है ना। तो कम्युनिकेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, इट मेक सेंस, है ना। और अभी मैं मतलब मैंने जो भी मोस्टली बात करी है वो बात करी कि भाई किस तरीके से फ्रॉम अ न्यू पर्सपेक्टिव, जैसे जैसे यू नो आपको 3 महीने होंगे, 6 महीने होंगे, साल होगा, आपकी टीम बन जाएगी, 5 लोगों की टीम बनेगी, 10 की बनेगी, 20 की बनेगी, 40 की, 100 लोगों की टीम बनेगी, आपको खुद समझ में आने लगेगा कि यार ये कितना इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन, है ना। तो बट होपफुली आई एडेड सम वैल्यू, होपफुली यू नो आप लोगों को कुछ समझ में आया हो, यू नो कम्युनिकेशन। अगर नहीं समझ में आया तो मतलब आई वुड से कि ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं था लेकिन अगर अच्छा था तो होपफुली यू लाइक समथिंग, आई थिंक दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इज मेकिंग सेंस, करेक्ट। सो बट okay, but इसके साथ I think I am done and want to you know welcome everyone. I know a lot of नए लोग हैं टीम में, welcome everybody. We build it with fun, बहुत मजा आता है, we hang out, we have a lot of fun and we make money, so that is even more exciting, correct, right? So but with that I'm done and back to your incredible host Rajiv. Thank you so much Rajiv. Thanks a lot, Anup. Definitely, it was an effective communication. I am personally going to implement a lot of things that you just talked, and you definitely, shared a lot of day-to-day examples. Specifically, you made me realize that atta gundna and all that stuff. Amazing. So yeah, definitely, it was great to have you, everyone over here. I'll definitely request everyone to mark this time in your calendars, because this conference is going to be happening every weekend. So definitely promote it in your team also, so that we can have more and more people plugging into this. With that, over and out. Have a great day ahead, and good night. Okay, bye bye.